Let's begin with the last indicator, that is Human Development Index, which is also known as an HDI. ये many of the times आपको full form में भी पूछते हैं कि what is HDI, so you should know it is Human Development Index. Now this is a last indicator of economic development. We have already studied within three indicators: growth rate of national income, per capita income, and physical qualities of life index. Now this is a fourth indicators. Actual में human development index किसको कहते हैं? Okay, that we will study first. The most recent indicators of development is Human Development Index. United Nations Program, that is UNDP, presented the Human Development Report in 1990. So first time this report was presented in the year 1990 by United Nations Development Program. Just underline it. This may come for the one sentence or MCQs also. In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development. Now it is said कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ से हम ह्यूमन का एक्चुअल में डेवलपमेंट कितना हुआ हम उसको मेजर कर सकते हैं. Along with economic aspects of measurement, Human Development Index emphasize more on non-economic aspects. नॉन इकोनॉमिक मतलब कि ये ज़्यादातर सोसाइटी ह्यूमन पॉपुलेशंस पे ऊपर ध्यान दे रहा है rather than only concentrating on economic aspects. Indian economists too contributed in involving the Human Development Index on the basis of evaluation made regarding the development efforts in the different countries. Even some of the economists have said that this is one of the best indicator, and they have also emphasized or put on their efforts for towards in this indicator. Improvement was introduced in the year 2010 in the minimum and maximum values which were used to measure in Human Development Index in 1990. ये introduced हुआ था 1990 में, लेकिन उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में चेंज हुआ था वो हुआ था ईयर 2010 में. मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1. PQLI में था मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 100. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1. ओके, फर्दर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज एन डिटर्मिनेंट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स, इट इज वन एंड द सेम. ओके, 3 factors alone are considered while preparing Human Development Index to make it simple and easy. Just turn your page number 23. Here also 3 values are taken. Okay, and instead of absolute value, average of all 3 values are taken. Average मतलब हमने PQLI में भी देखा था कि तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 करते तो हमको तीनों का एवरेज मिलता है. सो ईयर ऑल्सो तीनों का एवरेज ही लिया गया है. एंड व्हाट आर दोज 3 डिटर्मिनेंट्स? जस्ट सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन अचीवमेंट्स विच इज ऑल्सो नोन एज ए नॉलेज, डेटा depicts social achievements. Third is income data that depict the standard of living which in turn shows the economic achievement. So ये 3 indicators हैं. Let us study in detail. First one is Human Development Index में first है life expectancy. It is same like as it was in physical quality of life index. What is life expectancy? Expected year a child after his born is expected to live. मतलब एक बच्चे का born हुआ वो कितने ईयर तक जिएगा वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन हु लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस द वैल्यू. मतलब द डे व्हेन ही इज बोर्न, हाउ मेनी ईयर ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू लिव इज नोन एज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है किसी भी कंट्रीज की तो वी कैन से दैट द हेल्थ एंड द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ दैट कंट्री इज गुड. बट अगर एक्सपेक्टेंसी लो है then we can say that there is a development needed in health and medical services. Just see, if it is less than 50 years, that country is said to be deficient in health. Yes, एक मिनिमम एज है ना कि मिनिमम 50 तो होनी ही चाहिए हेल्थ. अगर उसके नीचे है तो वो कंट्री की हेल्थ इशू और मेडिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, हम ये बोल सकते हैं. मैक्सिमम नहीं दिया गया है क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि आफ्टर सर्टेन ईयर एज स्टॉप हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा जी नहीं सकते. मे बी द एक्सपेक्टेड ईयर 100 हो सकती है मैक्सिमम. हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDI. ओके, हायर मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है, 90 हो सकती है, उसके बाद ज़्यादातर लोग जीते नहीं हैं. सेकेंड इज नॉलेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज इन लिटरेसी और एजुकेशन.
To know the quantum of knowledge, adult literacy in percentage is calculated. Adult literacy in percentage is calculated. Okay, people in the age group of 15 and above are included. कौन कौन से people को include किया गया है? 15 years से above जितने भी लोग हैं उसको education में include किया गया है. So हमने बच्चे को include नहीं किया है, that is from the age of 0 to 14. Now two aspects are included in this. Okay, the first is number of year of schooling and second is expected number of year of schooling. सपोज के समझ लो कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर है, हम ले लेंगे कि सबको कंपल्शन हो गया है 21 ईयर्स तक एजुकेशन लेना. 21 ईयर्स मतलब कि आपका बीकॉम पास हो जाते हो आप, या ओके, ये आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर है. नाउ नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब हर कोई बीकॉम तक नहीं जाता है. एवरीवन डज नॉट गो टिल बीकॉम, यस, या फिर बीएससी बीए जो भी है, जो भी स्ट्रीम हो. एक्सपेक्टेड ईयर है 21 मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन हर कोई ग्रेजुएशन तक नहीं जाता है. सब में ड्रॉप आउट इन 10th स्टैंडर्ड, सब में ड्रॉप आउट इन 12th स्टैंडर्ड, सब में गो अबाउट है. ओके, बट एक्सपेक्टेड इज 21. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक्सपेक्टेड 21 है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग हम ले लेंगे कि 12 स्टैंडर्ड मतलब कि आपका ईयर हो गया 17 ईयर्स. आपने 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ा, FY SY TY ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, मतलब कि आपकी ईयर हो गई 17. नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग था 21, मतलब कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए. नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग है 17, मतलब कि आप सिर्फ 17 साल तक पढ़े हो, मतलब कि 12 स्टैंडर्ड में पढ़े हो. द गैप बिटवीन दिस इज 4. ये दोनों के बीच का गैप है 4. सो द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ स्कूल इज टेकन टू डिराइव द वैल्यूज. ये दोनों के बीच का जो गैप है उसकी एवरेज निकालते हैं. सो वी विल कम टू नो के हाउ मच इज द लिटरेसी इन आवर कंट्री. ओके, द थर्ड इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग refers to the availability of pure drinking water. See, standard of living when it comes, तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं. ओके, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ विल डिपेंड अपॉन द इनकम दैट वी होल्ड. हमारी इनकम के ऊपर हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंडेंट है. ओके, सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सर्विसेज, गुड सैनिटेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, percentage of undernourished and malnourished children, per capita calorie availability per day, mortality rate of infant below the 5 years of age, protein and fat availability etc. are taken into the consideration. ये सारी चीज़ को लिया गया है, ये सारे चीज़. एंड अगर हमारी इनकम अच्छी है तो वी कैन से कि हमको प्रोटीन, कैलोरी या जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो सब मिल रही है. अगर हमारी इनकम ही लो है तो वी कैन से कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो है. ओके, इनकम इंडेक्स इज दैट इन विच पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी. या फिर एक और तरीके से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर सकते हैं कि हमारा परचेजिंग पावर कितना है. यस, इस तरीके से भी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर कर सकते हैं. So this was the 3 aspects or determinants which was included in Human Development Index. Which are those 3 index? Life expectancy, knowledge, good standard of living. Next topic, important aspects. Now important aspects में भी सेम हमने जैसे PQLI में देखा था वैसा ही है. The first thing to remember here is the value of Human Development Index is always between 0 to 1. Minimum 0, maximum 1. Okay, in PQLI it was 100. Maximum value of Human Development Index is 1 and which is based on 3 standard. And the value of Human Development Index range from 0 to 1. मतलब range is 0 to 1, minimum 0, maximum 1. That countries whose human development index is closer to 1 is considered to be more development. मतलब 0.95, 0.96, 0.85 अगर हमारी वैल्यू ऐसी है, okay, then we can say that those countries are ranking closer towards an human development index. Yes, it gets higher ranking in human development index. Then the countries whose human development in value is further from 1, मतलब 0.25, 0.48
यस अगर ऐसी है देन इट इज कंसिडर्ड एज लेस डेवलप्ड एंड दोज कंट्रीज गेट lower ranking in Human Development Index. According to an 2014 data, Norway ranked number 1 with 10 values of 0.944, while India is with 0.609 rank 130th out of 188 countries. जब Human Development Index कि 2015-16 में सर्वे हुआ था तो 188 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से इंडिया रैंक ऑन 138 पोजीशन विद एन वैल्यू ऑफ 0.609, while Norway was on first position with 0.944. You will also see this in the table which is on your page number 25. Human Development Indicators for some countries in the world, that is HDR, Human Development Report 2015. The Human Development Report of 14, which was published in the year 2015, shows that the extent of human development of some countries in the following table. So let's go to page number 25. Here under this table you will see that Norway, as we have seen on the last page, which is on page number 24, Norway is first rank on value 0.944, while India is on 130th position with a value of 0.609. Okay. In this table you will also see कि जो हमारे 3 डिटर्मिनेंट्स थे, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, ओके, ये तीनों को भी इंक्लूड किया गया है. तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 18, हमारी एक्सपेक्टेड ईयर है 11.7 ईयर्स तक सबको पढ़ाई करनी है, और हमारे ईयर ऑफ एवरेज ईयर कितनी है 5.4. तो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो हमको कंसिडर करना है. ओके, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इज 11.7 एंड एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इज ओनली 5.4, which is also very less compared to the other developed countries. Okay, then we will go on with an explanations of the table. Just see sources. Now this table that we have learned is according to an HDR report 2015 and economic survey 15-16. जो 15-16 में सर्वे हुआ था वहाँ से जो ये डेटा मिला है उसके हिसाब से ये टेबल को फ्रेम किया गया है. Now this table is divided in 4 categories. Okay, let's see. According to the Human Development Index of 2014, which has included 188 countries, classified countries into 4 categories. Yes, countries are classified into the 4 categories on the basis of development. Development के basis में 4 categories में हर एक countries को divide किया गया है. Okay, first countries with an highest, second high human development, third moderate human development and last one is low human development. ये 4 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड किया गया है. नाउ हाईएस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आएगी? ओके, सो द एवरेज वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट टू 49th कंट्री, ओके, इज 0.890. कंट्रीज जिसकी वैल्यू 8.09 से ऊपर है एंड हु इज इन द फर्स्ट टू 49th रैंक में, फर्स्ट 49th पोजीशन पे है, फर्स्ट टू 49th पोजीशन में, वो सारी कंट्रीज आएंगी हाईएस्ट और मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट में. सेकेंड इज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में. तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कौन कौन सी कंट्रीज को लिया गया है? कंट्रीज हुज रैंक इज स्टार्टिंग फ्रॉम 59 एंड 105 रैंक तक, 50 टू 105 रैंक तक के बीच की कंट्रीज को कंसिडर किया गया है एंड इट्स वैल्यू शुड बी मैक्सिमम वैल्यू 0.735 मिनिमम, सॉरी. देन थर्ड, कंट्रीज विद मॉडरेट ह्यूमन वैल्यू. मॉडरेट में कौन सी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है? कंट्रीज विद 106 टू 143 रैंक विद इन 0.614 एंड यू नो इंडिया स्टैंड ऑन 130th पोजीशन. तो वी आर ऑल्सो अंडर द मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट. हमने देखा है टेबल में भी कि इंडिया स्टैंड ऑन 130th पोजीशन. इंडिया इज हियर विद इन 130th पोजीशन. सो वी ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ moderate human development. Countries, and the last is countries having low human development. Average value of human development of countries with 144 to 188. Okay, हर एक countries जो 144th पोजीशन से 188th की पोजीशन में है वो सारी countries will come under the categories of low human development and its value is 0.498.
8. Okay, so this was in tabular expression and its explanation. Next is derived solution. डिराइव सोल्यूशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो टेबल है उसमें से हमको क्या कंक्लूजन्स मिले हैं. ओके, सो डिराइव्ड कंक्लूजन्स फ्रॉम द टेबल इज दैट कि नॉर्वे इज ऑन द नंबर 1 with 0.94 for Human Development Index. India is on 130th position out of 188 countries with 0.609 value. India comes in moderate human development countries in the classifications of Human Development Index, and Nigeria in the continent of Africa with 0.348 comes last in the order of Human Development Index of 2015. You will also see this in your tabular expression. Okay, next topic is importance of Human Development Index. Importance of Human Development Index में first point है, Human Development Index is complete as not only take economic factor but also include social welfare by giving importance to education and health. Yes, ये social plus health दोनों को include कर रहा है. That is why it is a complete indicator to measure and economic development. ये सिर्फ economic factor पे नहीं बल्कि ज़्यादातर वो education, health, जो लोगों के इश्यूज़ है वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है कि मोर एंड मोर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड गो हाई, पीपल, सोसाइटी, ये सब में चेंज आना चाहिए, सोशल वेलफेयर के चेंजेस सोशल सोसाइटीज़ में चेंज आना चाहिए. येस, दैट इज़ वाई इट इज़ इन बेस्ट इंडिकेटर और इन कंप्लीट इंडिकेटर्स वी कैन से. Human Development Index indicate the policy maker that economic development is only a tool, but the ultimate objective is human welfare. Yes, economic development एक टूल है, एक ज़रिया है जिससे हम हमारा डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, बट उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो कब मेजर करेंगे? द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन वेलफेयर. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस होना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर में, सोसाइटीज़ में, उनके पॉवर्टी, उसके अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन वैल्यू शुड गो हाई. थर्ड, ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस. किसी भी देश प्रोग्रेस या किसी भी चीज़ का प्रोग्रेस कब कहलाएगा? जब नेशन बढ़ेगा, नेशन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ेगी, उसके साथ व्हेन सोसाइटीज़ विल ऑल्सो चेंज, द सोशल प्रोग्रेस विल ऑल्सो चेंज. यस, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशंस जो है लोगों की वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए. नेक्स्ट, HDI इज़ अ फंक्शनल. इट इज़ अ फंक्शनल क्योंकि इसके ज़रिए हमको कौन सी कंट्रीज़ का कितना डेवलपमेंट हुआ, हम कौन से पोजीशन पे हैं, हम कौन से रैंक पे हैं, हम उस विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वी कैन मेजर दैट. अ राइज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ranking indicate that the health and education have improved in the country. Yes, it has been said कि किसी भी countries का हमको compare कर सकते हैं और अगर if it is near to 1 तो हम बोल सकते हैं कि country has more developed, and if it is near to 0 तो we can still say that country needs more improvement in human development index. So basically ये importance है which says that अलॉन्ग विद इकोनॉमिक पीपल, उनकी सोसाइटीज़, उनके प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए. हेल्थ एंड एजुकेशन हैव बीन गिवन मोर इम्पॉर्टेंस रेदर देन एनी अदर इशू. बट एज हम बोलते हैं ना कि सब में हर एक चीज़ पॉजिटिव नहीं होते, सो अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और अलॉन्ग विद एन इम्पॉर्टेंट इन नेक्स्ट पेज नंबर 26 हम नेगेटिव भी देखेंगे. ओके, सो टर्न योर पेज. यहाँ पर एक और पॉइंट पढ़ना है, पेज नंबर 25 से टर्न होकर पेज नंबर 26 पे जाओ. Developing countries get an idea as to where there is a scope for development and in which direction should the government work by looking into the HDI. मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एन HDI हमको पता चल जाता है कि हमारे 3 एस्पेक्ट्स हैं. यस, ये 3 एस्पेक्ट्स में से हमको कहाँ वर्कआउट करना है to improve the standard of living. Okay, so developing countries can get an idea regarding that. And last one is human development is a progressive in its approach. मतलब कि ये एक प्रोग्रेस है, we will come to know about कि हम
मॉडरेट है। हमको कैसे पता चला कि हम मॉडरेट कंट्रीज़ में आते हैं? क्योंकि हमारी रैंकिंग 130th पोजीशन पे। सो इट इज़ एन प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच, मतलब कि हम किसी भी कंट्रीज़ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए नाप सकते हैं कि वेयर दे आर लैकिंग एंड वेयर एन इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और इन स्पाइट ऑफ इम्पॉर्टेंस, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे या उसको इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज लिमिटेशन, उसको हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं। नाउ जस्ट लाइक PQLI, यहाँ पर भी यही चीज़ बोली गई है कि ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 एस्पेक्ट्स लिए गए हैं सोशल सोसाइटीज़ के। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम इंक्लूड कर सकते थे, बट ड्यू टू लिमिटेशंस वी हैव नॉट इंक्लूडेड अदर aspects. So just see, only 3 social indicators are included in Human Development Index, which is less. Other social indicators should have been included. Second, all 3 indicators are given equal important. Yes, here also तीनों को प्लस करके वेटेज करके उसका एवरेज निकाला जाता है, बट इन रियलिटी इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट इंडिकेटर्स बिकम important. This also we have seen. The third limitation is Human Development Index is not an absolute expression. It is not an absolute expression क्योंकि ये न्यूमरिकल एक्सप्रेशन बता रहा है हमको कि न्यूमरिकल में कितना डेवलपमेंट हुआ, सो दैट वी कैन कंपेयर वन कंट्री विद अनदर कंट्री. इट ओनली शोज द रिलेटिव प्रोग्रेस एज इट कंपेयर्स वन कंट्री विद अदर कंट्री. ओके, अदर देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, बट अंडर दिस चैप्टर और अंडर दिस बुक दोज इंडिकेटर्स आर निगलेक्टेड. ओके, एंड विच आर दोज? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स. दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स जिसको मेजर करके या जिसको स्टडी करके हम मेजर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड ऑल सच इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूज्ड. ओके, so this is the end of your chapter.